السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے الدرس السابع یعنی 7واں سبق پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ 7ویں سبق میں نے بتایا تھا حروف جر۔ حروف جر کسے کہتے ہیں؟ حروف جر کی تعریف کیا ہے؟ حروف جر کہتے ہیں پریپوزیشن کو، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حروف جر عربی میں جو ہے 17 حروف ہیں، 17 حروف حروف جر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حروف کی خاصیت کیا ہے کہ جب یہ کسی نام کے شروع میں لگتا ہے، ایڈ ہوتا ہے، تو اس کو زیر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یعنی کل جو ہم نے لیسن سیکھا ہے اس وقت میں کچھ خاص حروف جر لائک اعلیٰ کے معنی پر، فی کے معنی میں، الا کے معنی ٹو ورڈز، من کے معنی سے، لی کے معنی کے لیے، بی کے معنی یا بائی یا بائی یا وے، ٹھیک۔ اسے یعنی حروف جر کو ہمیں جملہ ناقصہ میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ حروف جر کو ہم نے انکمپلیٹ سینٹینس میں استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو سبق ہے اس میں ہم حروف جر کو کمپلیٹ سینٹینس میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف جر کو ہم کمپلیٹ سینٹینس میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے، حروف جر کا استعمال مکمل جملے میں کیسے ہوتا ہے، اسے ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف جر میں نے بتایا کہ حروف جر 17 ہوتے ہیں۔ اس کو ایک شاعر نے ایک شعر میں پرو دیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ باؤ تاؤ کافو واو لامو واو منزو مزقلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، ٹھیک ہے۔ با تا واو کاف لام منزو مز خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، یہ 17 حروف جو ہیں یہ حروف جارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حروف جن اسما یعنی جن ناموں کے پہلے لگے گا ان ناموں کو، جی میں اسے آج چونکہ یہ دوسرا لیسن ہے حروف جر کے بارے میں، تو اسی لیے میں نے ابھی نہیں دیا ہے، آج انشاءاللہ حروف جر کو لکھ کر کے دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو حروف جر اور اس کے میننگ بھی کوشش کروں گا لکھ کر کے دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف جر ہو گئے ہیں، یہ جس اسما پر، اسما یعنی نام کے شروع میں لگیں گے اس کو جر یعنی زیر دے دیں گے، اس کو جر یعنی زیر دے دیں گے۔ اس حرف کے آخر میں جر یا کسرہ یا زیر، تینوں، جر یا کسرہ یا زیر ایک ہی چیز کا 3 نام ہے۔ زیر کو جر بھی کہتے ہیں، کسرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں علا مکتب سے پہلے لگا ہوا ہے تو علا لگنے کی وجہ سے مکتب کے نیچے زیر آیا، فی الفصلی، فی کی وجہ سے الفصلی کے آخر میں زیر آیا، ایسے ہی فی الیدی، ایسے ہی آپ دیکھ لیں فی الغرفتی، ایسے ہی آپ دیکھ لیں الی السوقی، ایسے ہی آپ دیکھ لیں للمدرستی، یا پھر فی الحوزی، یا پھر علی الشجرتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں لیسن پہ آتا ہوں۔ الدرس الثامن، 8واں سبق، الکتاب علی المکتبی، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اس سبق میں حروف جارہ کو
मुकम्मल जुमले में इस्तेमाल किया गया, और इससे पहले वाला जो था इनकम्प्लीट सेंटेंस में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल था। ठीक है, और इस सबक में कंप्लीट सेंटेंस है। अल किताबु अलल मक्तबी, ठीक है, क्या मतलब होगा? अल किताबु अलल मक्तबी, किताब मेज पर है। द बुक इज ऑन दी टेबल। ठीक है, अल किताबु अलल मक्तबी, अल किताबु अलल मक्तबी। ठीक है, उसके बाद है अल मक्तबु फिल फसली। मकतब के माना मेज, टेबल, तिपाई, उर्दू में तिपाई बोलते हैं। अल मक्तबु फिल फसली, मेज क्लास में है। फिल फसली, क्लास में। ठीक है, मेज क्लास में है। उसके बाद है अल कलम फिल हकीबती, कलम बैग में है। हकीबा के माने मैंने बताया बैग, लेकिन दाल से हदीका के माना बागीचा। ठीक है, दाल से हदीकतुन के माना बागीचा, पार्क, लेकिन हकीबा यानी काफ से हकीबा के माना बैग, स्कूल और कॉलेज बैग। अल कलम फिल हकीबती, कलम बैग में है यानी बैग के अंदर है। अल हकीबतु फिल यदी, ठीक है, अल हकीबतु फिल यदी, बैग हाथ में है। अल यदु के माना मैंने बताया था कि हाथ। ठीक है, मिनल यदी इलर रिजली, कल गुजर चुका है। मिनल यदी इलर रिजली, हाथ से पांव तक। अल हकीबतु फिल यदी, बैग हाथ में है। ठीक है, उसके बाद है अशजरतु फिल गुरफती। शजरतु के माना दरख्त या पेड़। ठीक है, तो अशजरतु फिल गुरफती, गुरफा के माना होता है कमरा, लाइक हुजरा, हुजरा के माना भी कमरा और गुरफा के माना भी कमरा। तो यहाँ पे अगर अशजरतु के माना अगर दरख्त लेंगे तो सही बेहतर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे पेड़, चूँकि क्या बोलते हैं, शो प्लांट वगैरह जो होता है वो कमरों में भी होता है। अशजरतु फिल गुरफती, ठीक है, पेड़ कमरे में है, फिल गुरफती कमरे में। जस्ट उसके बाद है अशजरतु, नहीं ये तो हो गया। रशीद, नहीं ये नहीं हुआ। हुआ जाहिबुन इलल मदरसती, हुआ, हुआ ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होता है जानते हैं? वो एक मर्द के लिए हुआ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें नया जो आया है वो देखना है। जाहिबुन नया आया है, नए टर्म में जो आया है जाहिबुन आया। बाकी आपने इला सीख चुके हैं, हुआ सीख चुके हैं, अल मदरसा के माना जानते हैं, तो सिर्फ जाहिबुन नया है, जाहिबुन को सिर्फ समझना है। जाहिबुन ये है इसमें फ़ाइल, इसमें फ़ाइल के माना होते हैं, इसमें फ़ाइल के वज़न पर है। इसमें फ़ाइल के माना होता है काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला। ठीक है, चाहे आने वाला, जाने वाला, पढ़ाने वाला वगैरह। वाला जिसके तर्जमे में होगा वो इसमें फ़ाइल होता है। ठीक है, तो ये ज़हाबा के माना जाना होता है, और उसी से बना है जाहिबुन जाने वाला। ठीक है, ये वाला इसके तर्जमे में निकलता है, लेकिन यहाँ पे तर्जमा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, हुआ जाहिबुन इलल मदरसती, वो मदरसा जा रहा है। ठीक है, ही इज गोइंग टू मदरसा। हुआ जाहिबुन इलल मदरसती, वो जा रहा है, जा रहा है से तर्जमा करेंगे। ठीक है, हुआ जाहिबुन इलल मदरसती, वो स्कूल जा रहा है या फिर मदरसा जा रहा है। रशीदतु जाहिबतुन इला सूकी। अब देखिए जाहिबुन और जाहिबतुन में क्या फ़र्क, जाहिबुन और जाहिबतुन में क्या फ़र्क? जाहिबुन मुज़क्कर था और जाहिबतुन मुअन्नस है, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे रशीदा चूँकि मुअन्नस है, ठीक है, और इससे ऊपर जो था हुआ, हुआ चूँकि प्रोनाउन था, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है नाउन की जगह। ठीक है, तो हुआ के साथ लगेगा जाहिबुन। ठीक है, जाने के लिए, जाने के बारे में, वो जा रहा है के लिए जाहिबुन लगेगा। लेकिन वो जा रही है या फिर एक रशीदा जा रही है तो क्या लगेगा? जाहिबतुन। उसी इसमें फ़ाइल के वज़न पर जो आएगा उसके आखिर में गोल ता लगा देंगे, तो इसमें फ़ाइल का मुअन्नस का सिगा बन जाएगा। ठीक है, जाने वाली, जा रही है। ठीक है, रशीदतु ज़ाहिबतुन इला सूक़ी, रशीदतु ज़ाहिबतुन इला सूक़ी, रशीदा बाज़ार जाने वाली है। लेकिन मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से तर्जमा करना है, रशीदा बाज़ार जा रही है।
रशीदतु ज़ाहिबतुन इला सूक़ी, रशीदा बाजार जा रही है। ठीक है, उसके बाद है अत्तिलमीज़तु ज़ाहिबतुन इला सफ़िन। अत्तिलमीज़तु, तिलमीज़ की मुअन्नस शक्ल है। तिलमीज़ के माना शागिर्द और तिलमीज़तु के माना शागिर्दा। ठीक है, मुअन्नस। अत्तिलमीज़तु, यही वजह है इसके साथ ज़ाहिबतुन आया है, ज़ाहिबुन नहीं आया है। ज़ाहिबतुन के माना मैंने बताया जाने वाली या जा रही है। इला सफ़िन, सफ़िन के माना मैंने बताया है जमाअत या क्लास। फ़स्ल के माना क्लास रूम और सफ़ के माना क्लास। ठीक है, जमात। अत्तिलमीज़तु ज़ाहिबतुन इला सफ़िन, शागिर्दा क्लास जा रही है, जमात में जा रही है। जमात से मुराद यहाँ पे एक क्लासमेट। ठीक है। अल किताबु लिल वलदी, किताब लड़का के लिए है। ठीक है, ली जो आता है के लिए आता है, ली के माना फॉर। अल किताबु लिल वलदी, किताब लड़का के लिए है या फिर किताब लड़का का है, दोनों तर्जमा कर सकते हैं। उसके बाद है अल मैदान लिल मदरसती, मैदान मदरसे का है, मैदान मदरसे का है। ठीक है, क्योंकि मैंने ली के माना बताया के लिए या फिर का। अल मकतबतु फिल मदरसती, मकतबा के माना लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी। अल मकतबतु फिल मदरसती, याद रखेंगे मकतबू विदाउट गोलता, अल मकतबू के माना मेज, लेकिन गोलता के साथ मकतबतु होगा तो इसके माना होंगे लाइब्रेरी। अल मकतबतु फिल मदरसती, लाइब्रेरी मदरसे में है, लाइब्रेरी मदरसे में है या फिर लाइब्रेरी स्कूल में है। अलमाउ फिल हौजी, अलमाउ फिल हौजी, अलमाउ के माना जानते हैं, आप सब जानते हैं। अलमाउ के माना होते पानी। ठीक है, फिल हौजी, हौज के माना हौज, टंकी। अलमाउ फिल हौजी, पानी टंकी में है। ठीक है, पानी टंकी में है। जी, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? रेज हैंड करें और बताएं, यहाँ तक मैंने जो बताया कोई प्रॉब्लम? खालिद भाई आपको अनम्यूट किया मैंने। जी, शिफा सैयद पूछें, अनम्यूट कर दिया मैंने। जी बोलें, शिफा सैयद। अनम्यूट है आप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी सर, ये मुझे इसका तर्जुमा नहीं समझ आया। इसी का, ठीक अल है। अल मैदानु लिल मदरसती, एक्चुअली कुछ हर्फ जो है उसके मीनिंग्स मुझे नहीं पता अल्फाजों जी, के, तो उससे मुझे अच्छा तकलीफ हो रही है समझने में। अच्छा अच्छा, ठीक। जी कल आपने ही बोला था पहले मीनिंग बताने के लिए। नहीं, किसी और ने बोला था, बट यही अच्छा, सवाल मेरा भी था। ओके ठीक है, फिर से बता देता हूँ। जी जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। देखिए, इसी को रिपीट कर रहा हूँ। मकतब के माना मेज़। ठीक है, किताब के माना जानते हैं आप, किताब। मकतब के माना मेज़, फसल के माना क्लासरूम और कलम के माना जानते हैं। हकीबतुन के माना बैग। ठीक है, अल यदु के माना होते हैं हाथ और अशजरतु के माना पेड़, दरख्त। ठीक है, और अल गुरफतु के माना हो जाएंगे कमरा। अल हुजरतु के माना भी कमरा और अल गुरफतु के माना भी कमरा। ठीक है, उसके बाद जाहिबुन को के माना मैंने बताया, जाहिबुन के माना जाने वाला या फिर जा रहा है। जाहिबतुन उसी की मुअन्नस शक्ल है। ठीक है, इसमें फ़ाइल का सिगा है। जाहिबतुन के माना जाने वाली या फिर जा रही है। और हुआ तो जानते हैं, हुआ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इला के माने जानते हैं, टू वर्ड्स, तरफ। मदरसा के माना भी जान चुके हैं। रशीदा एक लड़की का नाम है। ठीक है, सूकुन के माना बाजार, मार्केट। अतिलमीज़तु के माना फीमेल स्टूडेंट। ठीक है,
صف کے معنی صفن کے معنی صادفہ سے، صفن کے معنی جماعت کلاس، ٹھیک ہے. لی کے معنی کے لیے، لی کے معنی کے لیے. ولدن کے معنی لڑکا. للمدرستی مدرسہ کے لیے، ٹھیک ہے. المیدان میدان، اور مدرسہ مدرسہ. الحوض حوض کے معنی حوض جس میں پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ریپیٹ کرتے ہیں اسی کو. الکتاب علی المکتبی کتاب میز پر ہے، ٹھیک ہے. الکتاب علی المکتبی کتاب میز پر ہے، میز کے اوپر ہے. المکتب فی الفصل میز کلاس میں ہے، ٹھیک ہے. فی الفصل الفصل کے معنی ہوں گے کلاس درسگاہ، ٹھیک ہے. اور خاص دھیان دیں گے کہ یہاں ہم پریپوزیشن کا استعمال کر رہے ہیں، الا فی وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں. تو جس کے شروع میں الا اور فی اور الا وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اس کے آخر پہ زیر ہی ہوگا، یاد رکھیں گے. المکتب فی الفصل میز کلاس میں ہے، کلاس روم میں ہے. القلم فی الحقیبتی قلم بیگ میں ہے، ٹھیک ہے. الحقیبۃ فی الیدی بیگ ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. الشجرۃ فی الغرفتی پیڑ کمرہ میں ہے، غرفہ کے معنی کمرہ ہوتا ہے. هو ذاہب الی المدرسۃ وہ مدرسہ جا رہا ہے. ذاہب کے معنی جانے والا، لیکن ترجمہ کریں گے جا رہا ہے سے، ٹھیک ہے. رشیدۃ ذاہبۃ الی السوق رشیدہ بازار جا رہی ہے. اس کے بعد التلمیذۃ ذاہبۃ الی صف شاگردہ یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ کلاس جا رہی ہے. کلاس صف، صف کے معنی کلاس کیا بولتے ہیں، جماعت، جماعت گروپ، ٹھیک ہے، گروپ. الکتاب للولدی کتاب لڑکا کے لیے ہے، ٹھیک ہے. دا بک فار دی بوائے. المیدان للمدرستی میدان مدرسے کا ہے یا پھر مدرسے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. لی کے معنی کا بھی ہوتا ہے اور کے لیے بھی ہوتا ہے. المکتبۃ المکتبۃ گولتا کے ساتھ اگر رہے گا اس کے معنی لائبریری ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر بغیر گولتا کے ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے میز، ٹیبل. یہاں پہ المکتبۃ گولتا کے ساتھ ہے تو اس کے معنی لائبریری ہوں گے، ٹھیک ہے. المکتبۃ فی المدرستی لائبریری مدرسے میں ہے، مدرسہ میں ہے، ٹھیک ہے. الماء فی الحوض پانی حوض میں ہے، پانی حوض میں ہے. آگے سنیں پہلے. الطائر کے معنی پرندہ، الطائر کے معنی پرندہ. اعلیٰ کے معنی جان چکے ہیں آپ. الشجرۃ کے معنی بتا چکا کہ درخت یا پیڑ، ٹھیک ہے. اس کے بعد خارجن خرج سے ہوگا نکلنے والا، ٹھیک ہے، نکلنے والا. صف کے معنی جماعت کلاس گروپ، ٹھیک ہے. قادمن کے معنی آنے والا کمنگ پرسن، ٹھیک ہے، کمنگ پرسن قادمن، ٹھیک ہے. مسجد جانتے ہیں. الرجل کے معنی مرد ہوگا. التلمیذ کے معنی اسٹوڈنٹ، میل اسٹوڈنٹ. خارجن کے معنی ابھی میں نے بتایا، ٹھیک ہے، یعنی نکلنے والا، کہیں سے نکلنے والا، روم سے یا کمرے سے یا پھر کلاس سے. اس کے بعد الغلاف، غلاف کے معنی لفافہ، انویلپ، ٹھیک ہے. المنارۃ کے معنی مینارہ، مسجد کا مینارہ، مسجد کے معنی مسجد. اس کے بعد ہے السمک، سمک کے معنی مچھلی، ٹھیک ہے. حوض کے معنی بتا دیا میں نے. اس کے بعد ہے نیچے الزہرۃ، زہرۃ کے معنی ہوں گے پھول. اور لاسٹ میں جو ہے ریڈ لائن سے لکھا ہوا ہے الاسیس، الاسیس کے معنی ہوں گے فلاور پاٹ یعنی گملہ، ٹھیک ہے. میننگ میں نے بتا دیا. اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں. الطائر علی الشجرۃ، ٹھیک ہے. الطائر علی الشجرۃ پرندہ پیڑ کے اوپر ہے، پرندہ پیڑ پر ہے، ٹھیک ہے. طائر کے معنی پرندہ، پرندہ پیڑ پر ہے. انا خارج من الصف، ٹھیک ہے. انا خارج من الصف میں کلاس سے نکل رہا ہوں. صف کے معنی کلاس بھی کر سکتے ہیں اور جماعت بھی کر سکتے ہیں اور گروپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انا خارج من الصف میں کلاس سے نکل رہا ہوں. الرجل قادم من المسجد، الرجل کے معنی مرد، قادم کے معنی کمنگ پرسن، ٹھیک ہے. قادم من المسجد جہاں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے، اس کے شروع میں جیسے فرام لگتا ہے نا جہاں سے ریٹرن ہوتے ہیں تو ویسے ہی من لگے گا. الرجل قادم من المسجد
मर्द यानी आदमी मस्जिद से आ रहा है। कादिमुन के माना आने वाला, तर्जमा क्या करेंगे, आ रहा है। अर्रजुलु कादिमुन मिनल मस्जिद, मर्द मस्जिद से आ रहा है। ठीक है, मर्द मस्जिद से आ रहा है। उसके बाद है अतिलमीज़ु खारिजुम मिन सफ़िन, शागिर्द क्लास से निकल रहा है। खराजा से खारिजुन, निकलने वाला, निकल रहा है। ठीक है, अतिलमीज़ु खारिजुम मिन सफ़िन, शागिर्द क्लास से निकल रहा है। अलगिलाफु लिल किताबी, लिफाफा किताब का है, किताब की है। ठीक है, यानी द एनवेलप फॉर द बुक, यानी गिलाफ के माना एनवेलप, लिफाफा। गिलाफ किताब का है या फिर किताब के लिए है। अलमनारतु लिल मस्जिदी, मीनारा मस्जिद का है। अलमनारतु लिल मस्जिदी, मीनारा मस्जिद का है। अल किताबु लिल मक्तबती, किताब लाइब्रेरी की है। लिल मक्तबती, लाइब्रेरी। अल किताबु लिल मक्तबती, किताब लाइब्रेरी की है। अस्समकु फिल माई, अस्समक के माना मछली। अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। अल हौज़ु फिल मस्जिदी, हौज़ मस्जिद में है। हौज़ मस्जिदों में होता है वुज़ू, वुज़ू करने के लिए। ठीक है, अल हौज़ु फिल मस्जिदी, हौज़ मस्जिद में है। अल मस्जिद फिल मदीनती, मस्जिद शहर में है। मदीना के माना शहर। अल मस्जिद फिल मदीनती, मस्जिद शहर में है। अज़्ज़हरतु फिल असीसी, अज़्ज़हरतु के माना क्या बताया, फूल। अलवर्दतु के माना गुलाब का फूल, लेकिन अज़्ज़हरतु के माना कोई भी फूल। अज़्ज़हरतु फिल असीसी, फूल गमला में, फूल गमला में। ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी, किन्हीं को कोई सवाल? जी अंजुम कुरैशी साहब, अनम्यूट किया मैंने आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नहीं ठीक है सर, आगे चलिए। जी ये इजी था, इसमें दिक्कत नहीं है। जी, कासिम उस्मानी साहब, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जी ओके। अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 30। अल असीसु, असी के माना अभी मैंने बताया फ्लावर पॉट। ठीक है, अल असीसु अलल अर्जी, गमला ज़मीन पर है। अला के माना पर, अल अर्जी के माना ज़मीन। तो यहाँ देखेंगे कि अल अर्जी के नीचे, अल अर्जी के आखिर में ज़ेर है। क्यों ज़ेर है? क्योंकि हम इससे पहले अला प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, अला हरफ जर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यही वजह है कि अल अर्जी के आखिर में ज़ाद पे ज़ेर है। अल असीस अलल अर्दी, गमला ज़मीन पर है। ठीक है, हुआ, हुआ इस्तेमाल होता है वो एक मर्द के लिए, और वो एक औरत के लिए हिया इस्तेमाल होता है। ठीक है, हुआ कातिबुन बिल कलम, कातिबुन के माना राइटर, लिखने वाला, लिख रहा है। लिखने वाला तर्जुमा करेंगे लिख रहा है से। बी के माना मैंने बताया बाई और विथ। ठीक है, से और जरिया। हुआ कातिबुल कलमी, वो कलम से लिख रहा है। ही इज राइटिंग बाय अ पेन, वो कलम से लिख रहा है। ठीक है, हिया कातिबतुम बिल मिरकामी, हिया के माना शी का, यही वजह इसके साथ कातिबतुन इस्तेमाल हो रहा है। हिया कातिबुन, कातिबतुन बिल मिरसामी, बिल मिरसामी, मिरसाम के होते हैं पेंसिल। हिया कातिबतुन बिल मिरसामी, वो यानी वो एक औरत पेंसिल से लिख रही है। अल असीस अलल अर्दी, गमला ज़मीन पर है। वह कातिबुन बिल कलमी, वो यानी वो एक मर्द कलम से लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग बाय अ पेन। हिया कातिबतुन बिल मिरसामी, शी इज़ राइटिंग बाय पेंसिल। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक भी क्लियर होगा। आगे हम चलते हैं, मश्क प्रैक्टिस, सवाल जवाब है। ठीक है, अलिफ, अइनल मदरसतु, आईना के बारे में हमने हम समझ चुके हैं। आईना और हल, शायद आईना पहली बार आ रहा है, हल आ चुका है। हल के माना होते हैं क्या। ठीक है,
اور حل استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے، انٹروگیشن اور انٹروگیشن، ٹھیک ہے. آئینہ کے معنی بھی سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی آئینہ کا بھی استعمال سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن آئینہ کے معنی ہوتے ہیں کہاں. آئینہ کے معنی کہاں، ویئر، ٹھیک ہے. این المدرسۃ، مدرسہ کہاں ہے اور اسکول کہاں ہے، ٹھیک ہے. ویئر از دی اسکول. جواب ہے المدرسۃ فی المدینۃ. المدرسۃ فی المدینۃ، مدینہ کے معنی شہر. المدرسۃ فی المدینۃ، مدرسہ شہر میں ہے، اسکول شہر میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد این الریاض، ریاض جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، ریاض سعودی عرب کا ایک مشہور شہر ہے. این الریاض، ریاض کہاں ہے. جواب ہوگا الریاض فی السعودیۃ، ریاض سعودی عرب میں ہے. این الریاض، ریاض کہاں ہے، یعنی ریاض سٹی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کہاں ہے. الریاض فی السعودیۃ، ریاض سعودی عرب میں ہے. اس کے بعد ہے این القاہرۃ، قاہرہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، جسے کائرو کہتے ہیں، یعنی جو کیا بولتے ہیں، شاید کیپٹل ہے مصر کی راجدھانی ہے شاید. این القاہرۃ، القاہرۃ فی مصر، القاہرۃ فی مصر، قاہرہ مصر میں ہے. تو اب یہ سوال ہوگا کہ مصر سے پہلے بھی ہم فی استعمال کر رہے ہیں، لیکن مصر کے آخر میں جو حرکت ہم دے رہے ہیں، زبر کیوں دے رہے ہیں، یہ سوال ہو سکتا ہے، یہ سوال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو مصر ہے، لفظ مصر جو ہے یہ غیر منصرف ایک ٹرم میں ہے، عربی میں غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. اور غیر منصرف پہ زیر نہیں آتا ہے، اور غیر منصرف پہ اگر کسی وجہ سے زیر پڑھنا ہو تو پھر بھی کسی بھی حال میں زیر نہیں پڑے گا، بلکہ زیر کی جگہ زبر پڑے گا، یاد رکھیں گے. یعنی حالت جری میں تو ہے، حالت جری میں ہے، زیر والی حالت میں تو ہے، لیکن زیر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یہ القاہرۃ فی مصر ہی کہیں گے، را پہ زبر ہی کہیں گے، ٹھیک ہے. اور منصرف اور غیر منصرف کیا ہوتا ہے، آگے چل کر اس کو ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے. بس یاد رکھیں کہ مصر جو ہے غیر منصرف ہے، جس جو کیا بولتے ہیں، جس پہ حالت جری میں بھی زیر نہیں آئے گا بلکہ زبر رہے گا. لمن الحمد، الحمد کے معنی جانتے ہیں تعریف. لمن الحمد کے معنی ہوں گے تعریف کس کے لیے، ٹھیک ہے. تمام تعریفیں کس کے لیے. لمن کے معنی کس کے لیے، ٹھیک ہے. الحمد کے معنی تعریف، تعریفیں کس کے لیے، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں. الحمد للہ، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو صرف الحمد لکھا ہوا ہے، الحمد کے معنی تعریف ہوتی ہے اور للہ کے معنی اللہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن آپ جب گرامر پڑھیں گے اور جب الف لام کی قسموں وغیرہ کو سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ساری تعریفیں کہاں سے لا رہے ہیں، کوئی بھی اپنے من سے نہیں لاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یقیناً ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے. الحمد للہ کا معنی سمپلی تو اتنا ہی ہوگا کہ تعریف اللہ کے لیے، لیکن حقیقت میں یہ تعریف ہوگا کہ تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہیں. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حل المنارۃ للمسجد، حل المنارۃ للمسجد، دیکھیں حل تھا اور المنارۃ تھا. حل المنارۃ للمسجد، ٹھیک ہے. حل کے معنی کیا اور المنارۃ کے معنی مینار، للمسجد کے معنی مسجد کے لیے، ٹھیک ہے. تو حل المنارۃ للمسجد یہ اس طرح تھا، لیکن کیا کہتے ہیں، لام کو لام کے ساتھ، حل کا جو لام ہے اس کو لام کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے. تو اب ہو گیا حلل، حلل، ٹھیک ہے. کیوں ملایا، اس کا ریزن یہ ہے کہ حل کا جو لام تھا اور المنارتو میں جو الف لام ہے وہ لام تھا، دونوں ساکن تھا، ٹھیک ہے. دونوں ساکن تھا، دونوں ساکن تھا. ساکن کہتے ہیں زبر زیر پیش کسی بھی تینوں حرکتوں سے خالی ہونا ساکن کہلاتا ہے. اور دو لگاتار حرف پر ساکن آ جانا وہ عربی میں کہلاتا ہے اجتماع ساکنین، یعنی دو ساکن کا اکٹھا ہو جانا، ٹھیک ہے. اور دو ساکن جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو اجتماع ساکنین کہلاتا ہے، جو محال ہے، ٹھیک ہے.
محال مطلب کہ امپاسبل ہے، اجتماع ساکنین نہیں ہو سکتا. تو اب پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے جس قاعدے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے والے پہ زیر لگا دیتے ہیں. جس قاعدے کو ہم اگر جانیں گے تو پہلے والے کو ہم زیر لگا دیں گے. تو اب کیا ہو جائے گا، پہلے تھا حل المنارت، لیکن اب کیا ہو جائے گا حل المنارت، حل المنارت. ٹھیک ہے، پچھلے لام میں زیر دے دیں گے اور اگلے لام میں ساکن تو تھا پہلے سے، دونوں مل جائے گا. حل المنارت للمسجد، کیا مینارہ مسجد کے لیے ہے، کیا مینارہ مسجد کا ہے. نعم، ہاں. المنارت للمسجد، ہاں مسجد ہاں مینارہ مسجد کے لیے ہے، مینارہ مسجد کا. ٹھیک ہے. حل الکتاب للمکتبۃ، حل الکتاب، یہاں پہ بھی وہی بات ہے، مل جائے گا. حل الکتاب للمکتبۃ، کیا کتاب لائبریری کی ہے، لائبریری کے لیے ہے تو لائبریری کی ہے. حل الکتاب للمکتبۃ، کیا کتاب لائبریری کی ہے. نعم. حل کا جواب ہم دو طرح سے دیں گے، پازیٹیو رسپانس یس کے ذریعے یعنی نعم، نعم کے معنی ہاں یس، اور نگیٹو رسپانس لا، لا کے معنی نہیں نو. ٹھیک ہے. نعم الکتاب للمکتبۃ، ہاں کتاب لائبریری کی ہے. این المدرس، ٹیچر کہاں ہے، این المدرس، ٹیچر کہاں ہے. المدرس فی السیارۃ، ٹیچر کار میں ہے، سیارتن کے معنی کار. این السیارۃ، کار کہاں ہے. السیارۃ علی الشارع، السیارۃ علی الشارع، شارع کے معنی میں نے بتایا پچھلے لیسن میں گزر چکا ہے، سڑک. ٹھیک ہے. السیارۃ علی الشارع، کار سڑک پر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد این السورۃ، این السورۃ، این کے معنی کہاں، السورۃ کے معنی سورہ. السورۃ فی القرآن، سورہ کہاں ہے، قرآن میں ہے، قرآن کریم میں ہے. السورۃ فی القرآن، سورہ قرآن کریم میں ہے. اس کے بعد ہے من این انت قادم، من این کے معنی فرام ویئر. ٹھیک ہے. انت کے معنی یو، ٹھیک ہے، اور قادم کے معنی یو آر کمنگ، یعنی کمنگ پرسن. قادم آنے والا، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو من این انت قادم ملا کر کے ہم ترجمہ اس طرح سے کریں گے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. من این انت قادم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جواب ہے انا قادم من الملعب، انا قادم من الملعب، میں پلے گراؤنڈ سے آ رہا ہوں، میں میدان سے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. قادم کے معنی آنے والا یا پھر آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے، اس پر من لگائیں گے، فرام. ٹھیک ہے. انا قادم من الملعب، میں کھیل گاہ سے آ رہا ہوں. من این ہی قادمۃ، سیم اسٹرکچر پہ ہے، صرف من این کے معنی ہوگا فرام ویئر، ہیا کے معنی شی، قادمۃ کے معنی شی از کمنگ، یعنی وہ کہاں سے آ رہی ہے. من این ہی قادمۃ، یہ ہے اسی لیے قادمۃ استعمال کریں گے. وہ کہاں سے آ رہی ہے. ہی قادمۃ من کالکوتا، ہی قادمۃ من کالکوتا، وہ کولکاتہ سے آ رہی ہے. ہی قادمۃ من کالکوتا، وہ کولکاتہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الا اینا انتی ذاہبۃ، انتی سیکنڈ پرسن سنگل فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایک عورت. ٹھیک ہے. الا اینا انتی ذاہبۃ، آپ کہاں جا رہی ہیں، یعنی آپ ایک عورت کہاں جا رہی ہیں. انا ذاہبۃ الی دہلی، انا ذاہبۃ الی دہلی، میں دلہی جا رہی ہوں، میں دلہی جا رہی ہوں. انا ذاہبۃ الی دہلی، میں دہلی جا رہی ہوں. کیفا کے معنی ہوتے کیسے، کیفا کے معنی ہوتے کیسے، ہاؤ. کیف الزہر، پھول کیسا ہے، پھول کیسا ہے. تو متفتحۃ کے معنی میں بتا چکا کھلا ہوا. ٹھیک ہے. الزہرۃ متفتحۃ، پھول کھلا ہوا ہے. الزہرۃ متفتحۃ، پھول کھلا ہوا ہے. اس کے بعد ہے بِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ كَاتِبٌ، بِأَيِّ شَيْءٍ کے معنی ہوں گے کس چیز کے ذریعے. ٹھیک ہے. بِأَيِّ کے معنی کون سی، بِأَيِّ کے معنی کون سی چیز، بِأَيِّ کے معنی کون سی، اور شَيْءٍ کے معنی چیز، بائی ہارٹ. ٹھیک ہے. بائی ہارٹ.
किस चीज से, बिअय्यि शैइन हुआ कातिबुन, वो किस चीज से लिख रहा है, वो किस चीज से लिख रहा है, बिअय्यि शैइन हुआ कातिबुन, वो किस चीज से लिख रहा है, हुआ कातिबुन बिल कलमी, वो कलम से लिख रहा है, हुआ कातिबुन बिल कलमी, वो कलम से लिख रहा है। जी, यहाँ तक क्लियर हुआ या फिर कोई सवाल है? सवाल है तो रेज हैंड करें और पूछें। ये सारी का मतलब क्या है? शारिई के माने सड़क। सड़क। जी। जी। सादिक ताकी कौन है, आप बताएं, कोई परेशानी? मोहम्मद तालिब भाई, अनम्यूट किया मैंने आपको। सादिक फाकी, आपको भी मैंने अनम्यूट किया। फरहीन खान, जी। जी सर, लास्ट वाली लाइन समझा दीजिए। कौन सा है, कौन सी? बे हुआ किताब। हाँ, बी आई बी बी सही नहीं, क्योंकि थोड़ा प्रिंटिंग का मैटर है। बी जी आई है, याद रखेंगे, बी आई शईन, बी जी आई, बी आई शईन। शईन के माना तो फोन नहीं जानते हैं, शईन के माना थिंग्स होता है, यानी चीज होती है। बी आई के माना कौन सा, कौन सा, कौन सी चीज, बी आई शईन कौन सी चीज, यानी किस चीज के जरिए, ठीक है। हुआ कातिबुन, वो लिख रहा है। ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई सवाल किन्हीं को? रीदा नूर, सॉरी, अनम्यूट किया मैंने आपको। और कोई सवाल, कोई डाउट? देखिए, ये बुनियादी स्ट्रक्चर है, इसको अगर समझ लीजिएगा तो इंशाल्लाह आगे बहुत आसानी होगी, आपके लिए फ़ायदा होगा। एक एक चीज़ हम अगर तरतीब से ग्रेजुअली अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और जो भी चीज़ जैसे लाइक वाहिद मुज़क्कर है, तस्निया मुज़क्कर है, और फिर क्या बोलते हैं, जमा मुज़क्कर है, वाहिद मुअन्नस है, तस्निया मुअन्नस है, जमा मुअन्नस है, फिर अस्माए इशारा है, फिर पर्सनल प्रोनाउन, जो भी चीज़ अभी हमने पढ़ा है, तो ये ठीक है कि हमने एक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बुक पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको कलाम पाक में ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपको उसको देखना है और उसको समझना है। जी, शिफा सैयद, अनम्यूट किया मैंने आपको। जी सर, मिन आइना अंता कादिमुन। जी, मिन आइना के जी, माना हो गया फ्रॉम अन, वेयर। मिन आइना मिला हाँ, करके एक साथ जब इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम वेयर, ठीक है। अंता के माना यू फॉर मेल, कादिमुन के माना अन, कमिंग, यू आर कमिंग। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग फॉर मेल। ओके, अंता मीन्स यू। हाँ हाँ, अंता मीन्स यू फॉर मेल, सिंगुलर। अच्छा, एंड और अना आंसर आपका, उसका आंसर क्या है? अना कादिमुन मिन, वो मुझे मिनल मल पढ़ने में अबी, नहीं आ रहा। मिनल मल मिनल अबी, मल मल अबी मिन अबी, मल अबी के माना प्ले ग्राउंड, खेलगाह, खेल का मैदान। प्लेग्राउंड। ओके सर, थैंक यू। और कोई, और कोई सवाल या फिर आगे बढ़ा जाए? जी, और कोई है, देखते हैं। उरूज खान कहें, जी अनम्यूट किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये जो है मुतफ़त्तिहातु, इसका क्या मतलब बताया था आपने? किसका माना? अल-ज़हरतु मुतफ़त्तिहातु। हाँ, अज़हरतु के माना फूल, ठीक है। और मैंने बताया कि अलवर्दतु के माना गुलाब का फूल, और मुतफ़त्तिहतुन के माना होंगे खिला हुआ,
اور چونکہ الزہرتو گولتا کے ساتھ ہے इसलिए इसकी जो खबर प्रेडिकेट लाएंगे वो भी गोलता के साथ आएगा मुतफत्तिहतुन। ठीक है, फूल खिला हुआ है, फूल खिला हुआ है। हेलो, जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, ये मतलब इसमें अरबी में ऐसे शहर के नाम क्या ऐसे नहीं होते जैसे मुंबई को मुंबई बोले, कालकूता बोले कलकत्ता कालकूता। हाँ, कुछ ऐसे नाम है फिर जो हमको जी फिर हमको जी पता कैसे चलेगा कौन से शहर को क्या बोलना है हमें? ऐसे तो मतलब सब शहर तो आप समझा नहीं सकते ना। हाँ, तो कुछ शहर के नाम जो रहते हैं वो लगभग अरबी में वैसे ही बोले जाते हैं, जैसे मुंबई है तो मुंबई। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शहर के नाम जो थोड़ा चेंज हो जाते हैं, लाइक पटना को हम बोलेंगे बतना, टा को ता से चेंज कर देंगे बतना। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते खुद समझ में आ जाएगा, रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बहुत कठिन है अरबी। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं। और जब आने लगेगा ना तो दिलचस्पी इतनी होगी कि फिर मत पूछिए। ठीक है, बस यही सवाल था। सफा नंबर 31 पे हम आ गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 12, नीचे लिखे हुए जवाबात के सवालात कायम कीजिए। याद रखें, जवाबात के लिए सवालात यानी आंसर्स दिए हुए हैं, उस आंसर के मुताबिक आपको सवालात क्रिएट करना है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। उरूज खान साहब, आपका क्लियर हो गया ना? लोअर हैंड कर लें जी। तो पहला देखिए, 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए इन्होंने दे दिया है। मनफिल मकतबती, मनफिल मकतबती, मन के माना कौन। ठीक है, जविल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। जविल उकूल यानी अक्ल वाली चीजों के बारे में सवाल जब हम करेंगे तो मन इस्तेमाल होगा, और इसी के मुखालिफ अगर गैर अक्ल वाली चीजों के बारे में सवाल करेंगे तो माँ इस्तेमाल होगा। माँ के माना क्या, क्या चीज, और मन के माना कौन। ठीक है, यानी किसी फर्द, किसी शख्स के बारे में सवाल करेंगे तो मन से करेंगे। मनफिल मकतबती, मकतबा के माना मैंने बताया लाइब्रेरी। मनफिल मकतबती, लाइब्रेरी में कौन है। मन फिल मकतबती, मन के माना कौन, फी के माना में, अल मकतबा के माना लाइब्रेरी। मन फिल मकतबती, उसके बाद सवाल निशान लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो अब सवाल हो गया लाइब्रेरी में कौन है। ठीक है, तो जवाब है फिल मकतबती तुल्लाबुन, फिल मकतबती तुल्लाबुन। ठीक है, लाइब्रेरी में तलबा हैं यानी स्टूडेंट हैं, लाइब्रेरी में तलबा हैं। उर्दू में तालिब इल्म की जमा तलबा आती है। उसके बाद है मन फिल फसली, अल फसली के माना भी जानते हैं आप, अल फसली के माना क्लास रूम होता है। मन फिल फसली, क्लास में कौन है, हु इज इन द क्लास रूम। फिल फसली मुदर्रिसुन, क्लास में टीचर है, क्लास में कौन है, टीचर है। फिल असीसी नहीं, यहाँ पे छूट गया है, याद रखेंगे। यहाँ पे फिल असीसी, फिल असी के माना में, अल असीस के माना गमला, तो यहाँ पे लगना चाहिए था माँ, याद रखेंगे, मिस प्रिंट हो गया है। माफिल असीसी, माफिल असीसी सवाल में ही छूट गया है। माफिल असीसी, गमले में क्या है। फिल असीसी जहरतुन, गमला में फूल है। फिल असीसी जहरतुन, गमला में फूल है। यहाँ तक तो इन्होंने सवाल बता दिया, सवाल का पैटर्न बता दिया। अब आपको सिर्फ जवाब दिया हुआ है, जवाब के अकॉर्डिंग आपको सवाल क्रिएट करना है। तो पहले आप जवाब को पढ़ेंगे, जवाब के तर्जमे को समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सवाल क्रिएट करना है। जैसे पहला है अब, यानी चौथा, फिल इयादती, फिल इयादती तबीबुन। इयादती के माने होते हैं क्लिनिक, क्लिनिक में डॉक्टर है, क्लिनिक में डॉक्टर हैं। तो अब बताएं कि इसके लिए सवाल क्या होगा, सवाल बताएं उरूज खान साहब। जी तहमीना शेख बताएं। मनफी असीसी, नहीं, चौथा को देखें,
तीसरा तक तो हो चुका है, अच्छा हाँ, चौथा। मन फी इयादती। हाँ सही सही है, बिल्कुल करेक्ट। मन फिल इयादती के क्लिनिक में कौन है, क्या होगा? मन फिल इयादती क्लिनिक में कौन है, आपने बिल्कुल सही कहा, ठीक है। उसके बाद है फिल हकीकती औराकुन, सॉरी यहाँ पे हकीकती हो गया है, हालांकि ये हकीबती है, ठीक है। माइक म्यूट कर लें, माइक म्यूट कर लें, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है जी। फिल हकीकती लिखा गया है, हालांकि ये फिल हकीबती, हकीबती के माने बैग, औराकुन वरक की जमा यानी कागजात, बैग में कागजात हैं। अब बताइए इसके लिए सवाल क्या करेंगी? माफी हकीकती। बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब, आपका जवाब है, लेकिन ये यहाँ पे सवाल बन रहा है, ठीक है। माँ लगेगा, क्यों? क्योंकि औराक जो है गैर ज़वील उकूल है, गैर ज़वील उकूल है, ज़वील उकूल नहीं है। ज़वील उकूल और गैर ज़वील उकूल अच्छी तरीके से ध्यान में रखें कि ज़वील उकूल के माना अक्ल वाली चीज और गैर ज़वील उकूल गैर अक्ल वाली, ठीक है। आपने कहा माफिल हकीबती, बैग में क्या है, बिल्कुल सही। उसके बाद है फिल मुस्तशफा नबीलुन, मुस्तशफा के माना अस्पताल, अस्पताल में नबील है, नबील एक लड़का का नाम है। फिल मुस्तशफा नबीलुन, अब इसके लिए सवाल क्या होगा? माफी मुश्तफ। माँ कैसे होगा? अच्छा नबील वो है, सॉरी। मन फी मुस्तफी, हाँ बोले, मन फिल मन मुस्तशफा, मन, मुस्तशफा। हाँ मन फिल मुस्तशफा के अस्पताल में कौन है, तर्जमा होगा अस्पताल में कौन है, मन फिल मुस्तशफा, ये सवाल होगा। फिल मुस्तशफा नबीलुन, अस्पताल में नबील है, इसके लिए सवाल ये बनेगा मन फिल मुस्तशफा। आगे है फिश शरीकती मुहासिबुन, फी के माना तो जान चुके हैं, अशरीकती के माना होंगे कंपनी, ठीक है। फिश शरीकती कंपनी में, मुहासिबुन के माना हिसाब कुनिंदा, हिसाब करने वाला, अकाउंटेंट, मुंशी। तो अब क्या होगा सवाल? फिश शरीकती मुहासिबुन, कंपनी में मुहासिब है यानी अकाउंटेंट है। मन मन फी शरीक, हाँ कती। सही बोले, मन फिश शरीकती, मन शरीक, हाँ मन मन फिश फिश शरीकती। शरीकती। उसके बाद सवाल ये निशान लगा देंगे, ये हो गया सवाल। मन फिश शरीकती के कंपनी में कौन है, तर्जमा यही होगा कंपनी में कौन है। तो जवाब तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फिश शरीकती मुहासिबुन, कंपनी में मुहासिब यानी मुंशी है, अकाउंटेंट है, हिसाब करने वाला है। उसके बाद है फिल मतअमी, मतअम के माना रेस्टोरेंट या होटल, ठीक है, याद रखेंगे, मतअम के माना रेस्टोरेंट या होटल। फिल मतअमी सईदुन, रेस्टोरेंट में सईद है, सईद आदमी का नाम है, मर्द का नाम है, बताएं। मन फी मतअमी। मन फिल मतअमी, उसके बाद सवाली निशान लगा देंगे तो हो जाएगा मन फिल मतअमी, मतअम यानी रेस्टोरेंट में कौन है, जवाब ऑलरेडी दिया हुआ है, फिल मतअमी सईदुन, रेस्टोरेंट में सईद है। उसके बाद है फिल बैती आयशतुन, घर में आयशा है, आयशा लड़की का नाम, मुअन्नस का नाम, मन फिल बैती। हाँ मन फिल बैती, घर में कौन है, जवाब ऑलरेडी आपको है, फिल बैती आयशतु, आयशतु पे भी तनवीन नहीं लगेगा, औरतों के नाम पे तनवीन यानी दो पेश नहीं लगता। उसके बाद है फिल मलअबी, मलअब के माने जान चुके हैं, प्लेग्राउंड, खेलगाह, ठीक है, खेल का मैदान। फिल मलअबी लाइबूना, लाइब एक खिलाड़ी, लाइब एक खिलाड़ी, और वानून जुड़ा हुआ है। जानते हैं कि वाहिद मुजक्कर से जमा मुजक्कर बनाने का तरीका यह है कि उसके आखिर में वानून जोड़ देंगे, तो लाइबुन एक होगा बादो पेश बुन के साथ, लाइबुन एक खिलाड़ी, और वाव नून जोड़ देंगे तो लाइबूना हो जाएगा, चंद खिलाड़ी। फिल मलअबी लाइबूना, मैदान में कई खिलाड़ी हैं। अब बताएं। मन फिल मलअबी। जी मन फिल मलअबी, बिल्कुल सही। फिस सय्यारती औलादुन, कार में लड़के हैं, वलदुन की जमा औलादुन, लड़के। मन यहाँ पे भी सय्यारती। जी मन फिस सय्यारती, बिल्कुल सही। फिल हौजी समकुन, हौज में, समकुन के माना मछली, हौज में मछली है। अब बताएं क्या होगा? मन फिल हौदी। सॉरी
मन नहीं होगा, माँ होगा ना, या मन होगा मछली के लिए? मन होगा ना, मछली तो हाँ अक्ल वाली है। हाँ, ठीक ठीक ठीक, मन ही होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ आप अक्ल लोगों का? वाली। मेरी आवाज आ रही है? जी बोले। मतलब दिमाग जिसके अंदर होता है उसके लिए होता है माँ और मन। हाँ हाँ, यानी अक्ल वाली यानी कि चीजों के बारे में मन, और गैर अक्ल अच्छा, वाली चीजों के बारे में सवाल करेंगे माँ। अच्छा जैसे कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो या कोई भी चिड़िया हो, हाँ उसके हाँ लिए हाँ हाँ, मन मन आएगा, है इस्तेमाल ना? होगा। जी जी, अच्छा अच्छा, यानी कि मछली के लिए भी मन। हाँ ठीक है। और किताब वगैरह है, किताब या कोई घर है किसी के बारे में, तो उसके लिए माँ। हाँ, उसके लिए माँ, ठीक है, क्लियर। हाँ। चलिए आगे चलते, लास्ट थोड़ा है जी। अरबी में तर्जमा कीजिए, अरबी में तर्जमा कीजिए। रशीद कहाँ है? रशीद एक आदमी का नाम है, कहाँ है कि अरबी जान चुके हैं, आईना, ठीक है। आईना के आइना माना कहाँ? रशीदुन। हाँ सही है, बिल्कुल। आईना रशीदुन, रशीद कहाँ है, सवाल निशान लगाते जाएंगे। आईना रशीदुन, रशीद कहाँ है। मेज पर क्या है? मेज पर, मेज की अरबी पहले बताएं। जी मकतबुन। हाँ, एक मिनट, कासिम भाई बोले। सर हम ये कह रहे थे कि रशीद क्यों नहीं कहा जाएगा, क्या रशीदुन रशीद? क्यों कहा जाएगा? हमारा कहने का मतलब ये था कि जैसे रशीद नाम है तो रशीद ही कहा जाएगा ना, रशीदुन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि देखिए सवाल कर रहे हैं ना, तो आईना जो है वो ग्रामर में मुब्तदा बन रहा है, अगरचे वो इस्तिफाम फॉर नहीं, इंट्रोगेशन। जैसे लाइफ मर्रा की जिंदगी, मतलब जैसे हाँ हाँ रोजमर्रा हाँ की जिंदगी हाँ, में रैंडम अब रशीदुन। जब, हाँ जब आप रैंडम हाँ गुफ्तगू करेंगे तो आईना रशीद कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप हाँ आईना रशीदुन कहेंगे, समझ गए? आपकी जी बात जी मैं समझ गया। रैंडम अगर कहेंगे आईना रशीद, आईना क्या बोलते हैं हमीद, आईना, वहाँ पे दुन और तनवीन वगैरह इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, ठीक है जी जी जी। जी। आईना रशीदुन, यहाँ पे रशीदुन ही होगा, लेकिन आप अगर गुफ्तगू में बात करेंगे तो आईना रशीद बिल्कुल कह सकते हैं। आईना हबीब, आईना हमीद, आईना हामिद, नॉट हामिदुन, हमीदुन, रशीदुन, कोई जरूरी नहीं। मेज पर क्या है? मेज की अरबी अल मकतब, ठीक है। और मेज पर क्या है? पर की अरबी आती है आला, ठीक है। मा अलल मकतबी, मा अलल मकतबी, क्या होगा? मा अलल मकतबी, मेज पर क्या है। उसके बाद है कमरे में कौन है? कमरे में कौन है? तो अब बताए क्या होगा? कमरे में कौन है? मन फिल हुजरती, मन फिल हुजरती, सवाल निशान, हाँ सवाल निशान लगा देंगे, सवाल हो जाएगा कमरे में कौन है, मन फिल हुजरती, ठीक है। उसके बाद है मैदान किस चीज का है? मैदान की अरबी मैदान भी आती है, साहतु भी आती है, अलमलाबू भी आती है। हेलो। हाँ जी बोले। अगर कमरे में कौन है की जगह होता कमरे में क्या है, तो माँ आता ना इसमें, माँ। हाँ हाँ बिल्कुल, माफिल हुजरती हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कमरे में कौन है। हाँ हाँ बिल्कुल, कौन में तो कोई भी इंसान हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, कौन में इंसान हो जाएगा, और क्या है तो वो गैर इंसान, गैर अक्ल वाली चीज हो जाती, ठीक है। माँ अलल हाँ, हुजरती हो जाता, जी बिल्कुल सही है। हाँ। मैदान किस चीज का है, ठीक है। किस चीज के लिए आया, क्या है? लिमन आएगा लिअय्यिश, इसमें क्या? किसमें? किस चीज के लिए? नहीं, लिअय्यि शयइन आएगा, लिअय्यि शयइन। अच्छा, ले आइए शयीन। हाँ, अल मैदानु लिअय्यि शयइन, ठीक है, या फिर लिअय्यि शयइन मैदानुन, दो तरह से बोल सकते हैं। अल मैदानु लिअय्यि शयइन, मैदान किस चीज का है, या फिर लिअय्यि शयइन मैदानुन, अल मैदानु, Yes. ठीक है। कुर्सी कैसी है? कैसा के लिए क्या आया अभी? कैफा, कैफा, कैफा नहीं पूछते हैं, कैफल हाल, कैफा क्या हाल है। कुर्सियुन। हाँ, कैफल कुर्सियु, कैफल कुर्सियु। कुर्सियु। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम कहाँ से कैफा आ भी रहे हो? हुरूफ जर है क्या? हुरूफ कैफा जर नहीं, नहीं नहीं है। नहीं, हुरूफ जर नहीं, हर्फ इस्तिफाम है और इंट्रोगेशन, ठीक है, सवाल करने के लिए। कैफल कुर्सियु, यही वजह है कि कुर्सियु पे पेश आएगा, ठीक है। तुम कहाँ से आ रहे हो? दो पेश नहीं आ सकते उसमें क्या? नहीं, दो पेश नहीं कुर्सी। आएगा, नहीं, चूंकि अलिफ लाम लगा रहे हैं ना,
یہ دھیان دینا ہے کہ الف لام اچھا لگائیں گے تو 2 پیش نہیں، اور الف لام نہیں لگائیں گے تو 2 پیش آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ where are you کہاں سے آ رہے ہو تو من والا لگے گا، یاد رکھیں گے. کہاں سے آ رہے ہو تو من والا لگے گا. من اینا انتا قادمون فار میل. ٹھیک ہے. من اینا انتا قادمون. من اینا فرام ویئر، انتا قادمون آر یو کمنگ. ٹھیک ہے. اور فار فیمیل من اینا انتی قادمتن. من اینا انتی قادمتن فار فیمیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ جی آئینہ ایک منٹ قاسم بھائی پوچھیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے حلیمہ کہاں جا رہی ہے، حلیمہ وین رو یہ بھی آتا ہے نا. جی جی ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حلیمہ کہاں جا رہی ہے، آپ نے ابھی پوچھا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حلیمہ وین انتر رو یہ بھی آتا ہے نا. نہیں ایسا تو نہیں ہے. وین انترو ہاں ہاں دیکھیے ایک جو آج کل جو سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں فار ورکنگ پرپس، تو جی وہ جی ویری کیا بولتے ہیں، وہ چالو عربی بولتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں سمجھ گیا. اس میں اور اس میں کتابی عربک میں بہت فرق ہے. دیکھیے ایک یہاں کے لوگ میں ہم لوگ جو ہوتے ہیں اس میں ایک رینڈم جو بات کرتے ہیں، دیہاتی باتیں جو بہت ہی بھی ہے مطلب رفلی رفلی بات جی جی. کرتے ہیں. اور جو ایک زبان والی پڑھائی کیا بولتے ہیں، پڑھے لکھوں کی زبان اور ایک چالو زبان میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی 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 حلیمہ کہاں جا رہی ہے؟ الا اینا حلیمۃ ذاہبۃ. الا اینا کہاں جا رہی. الا اینا، الا کے معنی 2 ورڈز ہوگا. اینا کہاں، پوچھا جا رہا ہے. الا اینا حلیمۃ ذاہبۃ. الا اینا حلیمۃ ذاہبۃ. حلیمہ کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علا کا مطلب طرف ہوتا ہے نا. ہاں طرف ہوتا ہے. الا کے معنی طرف ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس ہے میں تو کوئی کیا ہوا. الا مطلب اس اینا، ورڈ ہاں جی ایلا کے معنی طرف. ٹھیک ہے. آئینہ، چونکہ آئینہ سے ہم سوال ہی کر رہے ہیں کس طرف جا رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. تو الا آئینہ کہاں جا رہی ہے. ٹھیک ہے. الا آئینہ حلیمۃ. الا آئینہ حلیمۃ ذاہبۃ. حلیمہ کہاں جا رہی ہے، یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کیا تم کلکتے سے آ رہی ہو. حل انتی قادمۃ من کالکوتا. حل انتی قادمۃ، چونکہ انتی ہے تو قادمۃ آئے گا. حل انتی قادمۃ من کالکوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نہیں، جواب دے رہی ہے نہیں میں مدراس سے آ رہی ہوں. نہیں کے لیے لا آتا ہے. لا میں مدراس سے آ رہی ہوں. ہاں نہیں لا. انا قادم قادمۃ مدرسۃ من مدراس. انا قادمۃ من مدراس. من میں مدراس. مدراس سے آ رہی ہوں. اس کے بعد ہے کیا قرآن عربی میں ہے. ٹھیک ہے. تو حل القرآن فی العربی. حل القرآن فی العربی. تو چونکہ ابھی میں نے بتایا حل اور اس کے بعد حل پہ جو لام ہے وہ بھی ساکن، اور القرآن کا جو لام ہے وہ بھی ساکن. 2 ساکن جب جمع ہو جائے گا تو پہلے والے پہ زیر دے دیں گے. پہلے والے پہ زیر دے دیں گے تو اب کیا ہو جائے گا، حل القرآن، ناٹ حل القرآن. حل القرآن فی العربی. کیا قرآن عربی میں ہے، یعنی عربی زبان میں ہے. ٹھیک ہے. بس سوال ہے، جواب نہیں دیا ہوا ہے. حل القرآن فی العربی. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب اگر ہوگا تو اس طرح سے ہوگا نعم القرآن فی العربی. ٹھیک ہے. جی ہاں قرآن عربی میں ہے. اس کے بعد ہے طائف کہاں ہے. طائف کہاں ہے. تو کیا ہوتا ہے آئینہ آئینہ کے طائف. معنی کہاں. این طائف. این طائف یا پھر الف لام کے ساتھ ہوگا تو این طائف. طائف کہاں ہے. طائف کہاں ہے، سعودی عرب میں ہے. حوض کہاں ہے. حوض کہاں ہے. این الحوض. حوض کی عربی حوضی ہے. این الحوض. اس کے بعد ہے کیا یہ منارہ مسجد کا ہے. تو منارہ جو ہے مؤنث آتا ہے. المنارۃ. مائک آف کر لیں، ایکو آ رہا.
हल हाजिहिल मनारतु लिल मस्जिदी, हल हाजिहिल मनारतु लिल मस्जिदी, हल हाजिहिल मनारतु, हल के माना क्या, हाजिहिल मनारतु यह मस्जिद, ठीक है, यह मीनारा, लिल मस्जिदी मस्जिद के लिए है या फिर मस्जिद का है। जी माइक म्यूट कर लें, आवाज ज्यादा आ रही है। जी खास ख्याल रखेंगे, जब कॉल करेंगे जो साथी उसी वक्त माइक को अनम्यूट करना है। हल हाजिहिल मनारतु लिल मस्जिदी, हल हाजिहिल मनारतु लिल मस्जिदी, ठीक है। उसके बाद है क्या तुम इराक से आ रहे हो, हल अंता कादिमुम मिनल इराक, हल अंता कादिमुम मिनल इराक, हाँ मैं इराक से आ रहा हूँ, नाम, हाँ और यहाँ नाम, और यहाँ होगा अगर इराक से आ रही हो तो अंता की जगह अंती, हाँ अंती, अंता की जगह अंती और कादिमुन की जगह कादिमतुन, ठीक है। हाँ मैं इराक, हाँ मैं इराक से आ रहा हूँ, नअम अना नअम अना कादिमुम कादिमुन अलल मिनल इराक, मिनल जहाँ से रिटर्न होंगे उस पे मिन लगेगा, याद रखेंगे, और जहाँ जा रहे हैं उधर की तरफ इला लगेगा, याद रखेंगे। जिधर की तरफ जाते हैं इंग्लिश में टू लगता है और रिटर्निंग में फ्रॉम लगता है, वैसे ही अरबी में जिधर की तरफ जा रहे हैं उधर इला लगेगा और जिधर से रिटर्न हो रहे हैं उस पे मिन लगेगा। ओके, क्या तालिब इल्म दिल्ली से कराची जा रहा है, ठीक है। हल अत्तालिबु, इसको मिला देंगे तो क्या होगा, हलित तालिबु, हलित तालिबु चूंकि वाहिद है तो जाहिबुन होगा, हलित तालिबु जाहिबुन, जाहिबुन इला किरात शी मिन दिल्ली, हलित तालिबु जाहिबुन इला किरात शी, इला मतलब टू वर्ड्स और मिन के माना फ्रॉम, मिन दिल्ली, हलित तालिबु जाहिबुन इला किरात शी मिन दिल्ली, ठीक है। क्या मुअल्लमा, मुअल्लिमा, मुअल्लिमा के माना टीचर, ठीक है, लेडी टीचर, हलिल मुअल्लिमतु, हलिल मुअल्लिमतु क्या है, हॉस्टल से क्लास जा रही है, हलिल मुअल्लिमतु जाहिबतुन, जाहिबतुन हॉस्टल से क्लास जा रही है, ठीक है, हॉस्टल से क्लास जा रही है। हॉस्टल की अरबी आती है अर्रुवाक, याद रखेंगे, हॉस्टल की अरबी आती है अर्रुवाक और क्लास की अरबी है अल-फस्लु, जानते हैं। हलिल मुअल्लिमतु जाहिबतुन, जाहिबतुन इलल फस्ली मिनर रुवाकी, हलिल मुअल्लिमतु जाहिबतुन इलल फस्ली मिनर रुवाकी, ठीक है। उसके बाद है बीमार कहाँ है, बीमार की अरबी आप जानते हैं, ठीक है। उसके साथ शुरू में हम आईना लगा देंगे। माइक ज्यादा इको हो रहा, देखें चेक करें किनका ओपन है। बीमार कहाँ है, ऐनल मरीजू, ऐनल मरीजू, मरीज के माना बीमार, ठीक है, ऐनल मरीजू बीमार कहाँ है। उसके बाद है क्या नर्स क्लिनिक में है, क्या नर्स क्लिनिक में है, नर्स की अरबी आती है अल मुमर्रिज़तु, अल मुमर्रिज़तु, और अगर विदाउट गोलता अगर रहे तो फिर मेल केयर टेकर हो जाएगा, और विथ गोलता हो राउंडेड ता फीमेल केयर टेकर, ठीक है। क्या नर्स क्लिनिक में है, हलिल मुमर्रिज़तु फिस सैदलियती, हलिल मुमर्रिज़तु फिस सैदलियती, क्लिनिक की अरबी सैदलिया है, हलिल मुमर्रिज़तु फिस सैदलियती, ओके। डॉक्टर ये है, याद रखेंगे, डॉक्टर ये है लिखा हुआ है, नॉट ये डॉक्टर है, समझे, दोनों में फर्क है। ये डॉक्टर है कि अरबी होगी हाजा तबीबुन, लेकिन डॉक्टर ये है, इस तरह से नहीं बोलते हैं, अरे डॉक्टर ये तो डॉक्टर है, ठीक है। तो डॉक्टर ये है, इसकी अरबी होगी अत-तबीबु हाजा, हाजा पहले ना लगा करके पीछे लगाएंगे, ठीक है, पहले अत-तबीबु उसके बाद हाजा लगाएंगे, तो इसका तर्जमा होगा डॉक्टर ये है, ठीक है। अत-तबीबु हाजा, डॉक्टर ये है, अत-तबीबु हाजा, क्लिनिक वो है, क्लिनिक वो है, अस-सैदलियतु या फिर नहीं है, क्लिनिक की अरबी अल-इयादा आती है, अल-इयादतु तिलका,
ठीक है, इसमें भी तिलका को पीछे लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। इसमें इशारा पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंस हो रहा है, जो लिखा हुआ है, ऐसे सेंस में हम पीछे लगाया करते हैं। क्लिनिक वो है अल इयादतु तिलका, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों को याद दिलाया जाए, बिगिनर्स को याद दिलाया जाए कि इंसान के लिए मन, ठीक है, इंसान के लिए मन और गैर इंसान के लिए माँ आता है, जो आप अच्छी तरीका से समझ चुके हैं, ठीक है। इंसान के लिए मन और गैर इंसान के लिए माँ आता है। जी मोहम्मद मतीन भाई पूछ रहे हैं आप कुछ? जी पूछें। जी आपने समक के लिए माँ बताया था, अभी मन बताया था, सॉरी। जी, तो बट यहाँ पे यहाँ हाँ हाँ गैर हाँ इंसान के लिए माँ आ रहा है। हाँ, यही बता रहे हैं। तो समक के लिए माँ ही आएगा, ठीक है, समक के लिए माँ आएगा, यही क्लियर हो रहा है इससे, ठीक है। इंसान के लिए मन और गैर इंसान के लिए माँ। यहाँ पे उस सेंस में नहीं लेंगे, क्या बोलते हैं, दीवार जैसे गैर जानदार और जानदार, जो हम इस तरह से कंपेयर करते हैं ना, कि एक दीवार हो गया और एक मछली हो गई, तो दीवार में तो कोई सेंस नहीं है और मछली में तो सेंस है, उस सेंस में नहीं लेंगे, बल्कि इंसान से कंपेयर करते हुए देखेंगे। इंसान का जैसा सेंस है, उसके मुखालिफ जानवर वगैरह का सेंस नहीं है, तो इस हिसाब से लेंगे। क्या यहाँ पे जो ज़वील उकूल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ज़वील उकूल के माना होते हैं अक्ल वाला। यहाँ पे अक्ल वाला असलन अगर देखा जाए तो इंसान ही है, और गैर अक्ल वाला बाकी तमाम चीजें हैं, ठीक है, यही क्लियर हुआ। और कोई सवाल? जीशान भाई। जी अली साहब ठीक है सर। और शहजाद भाई। जी कुछ सवाल है? नहीं भाई जी। और रोजीना। रीदा नूर। नहीं देखिए, सर, अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, और जाहिर है आप लोग खुद भी अंदाजा लगाएं अपने बारे में कि आप लोगों को कुछ ऐसा फील हो रहा है कि नहीं कि हम कुछ गेन कर रहे हैं, मतलब कुछ डे बाय कुछ सीख रहे हैं। चूंकि देखिए, पहले सबक में हमने क्या सीखा, इसमें इशारा और मुशारू निले के बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हमने समझा कैसे इस्तेमाल होता है वो, ठीक है। फिर उसमें हमने बताया था कि क्या बोलते हैं, जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं उसको मुशारू निले कहेंगे, और अगर जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं अगर उस पर अलिफ लाम आ जाए तो वो मुशारू निले कहलाएगा, ठीक है। और वो दोनों मिल करके सेंटेंस का सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट बनेगा, नॉट कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। फिर उसके लिए खबर यानी प्रेडिकेट अलग से लाना पड़ेगा। लाइक हाजल मस्जिदु के माना होगा, हाजल मस्जिदु के माना होगा यह मस्जिद, ठीक है, दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। अब उसके लिए हमको प्रेडिकेट लानी होगी, क्या लाना होगा, हाजल मस्जिदु जमीलुन, दिस मॉस्क इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो और अगर जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं उस पे अलिफ लाम के बजाय तनवीन है, ठीक है, अलिफ लाम के बजाय तनवीन है, और हम जान चुके हैं कि अलिफ लाम और तनवीन दोनों एक ही नाम के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकता, तनवीन है, तो वो मुशारुन इलैह तो है, उसकी तरफ इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रामर में क्या बनेगा, खबर बन जाएगा, डायरेक्ट प्रेडिकेट बन जाएगा। तो हाजा मस्जिद के माना होगा यह एक मस्जिद है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस, यह एक मस्जिद है कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन हाजल मस्जिदु इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है, इसको समझा था। उसके बाद दूसरे तीसरे लेसन में हमने पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल सीखा था। पर्सनल प्रोनाउन कैसे किसे कहते हैं, लाइक अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ठीक है, 14 सेगे होते हैं, इसको हमने समझा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के तौर पे समझा था। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा था, क्या बोलते हैं, इसमें मारिफा और नकीरा बनाना सीखा, इसमें मारिफा से इसमें नकीरा बनाने का तरीका सीखा था। इसमें मारिफा का तर्जमा, इसमें नकीरा का तर्जमा हम जब करते हैं, कॉमन नोन का तर्जमा, तो उसके तर्जमे में एक या कोई आता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको अलिफ लाम लगा करके इसमें मारिफा यानी प्रॉपर नोन बना देते हैं तो तर्जमे से एक या कोई हट जाता है, ठीक है, ये सीखा था। उसके बाद हमने हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी के बारे में सीखा था कि जब हुरूफ कमरी भी 14 है और हुरूफ शमसी भी 14 है, जब हम
कोई ऐसा लफ्ज देखेंगे जिसका पहला लेटर हरूफ कमरी के कैटेगरी में से आता है और उसके शुरू में हम अलिफ लाम दाखिल यानी ऐड कर रहे हैं, तो अलिफ लाम दोनों का प्रोनाउंस होगा यानी तलफ्फुज होगा। लेकिन अगर ऐसे नाम के शुरू में अलिफ लाम लगा रहे हैं जिसका पहला लेटर याद रखेंगे, लेटर यानी हर्फ, पहला लेटर हरूफ शमसी की कैटेगरी में से आता है, तो अब अलिफ का तलफ्फुज तो होगा, लाम का नहीं होगा, बल्कि अब अलिफ के बाद जो लाम है, लाम दूसरे पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन को छोड़ करके जो थर्ड पोजीशन है उस पे शद्दा यानी तशदीद होगा और अलिफ उस शद्दा वाले लेटर से यानी हर्फ से मिलकर पढ़ा जाएगा, उसमें इदगाम हो गया, दूसरा लेटर तीसरे लेटर में इदगाम हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने प्रीपोजिशन को सीखा कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यानी हरूफ जर को सीखा। हरूफ जर को हमने इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी नाकिस जुमला में पहले सीखा पिछले सबक में, कल के सबक में, और आज के सबक में हमने हरूफ जर को क्या सीखा, मुकम्मल जुमले में सीखा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब तो कोई सवाल नहीं है, एंड करते हैं क्लास। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ठीक है।